आज की इस शाश्वत परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागी साथियों को सादर नमस्कार। मित्रों, गंगा कावेरी व्याख्यान माला का 11वां व्याख्यान है आज। 31 जुलाई से लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभाग, पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु हिंदी विभाग और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में इस व्याख्यान माला की शुरुआत की गई थी। आज हम 11वें व्याख्यान को कराने के लिए जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो प्रतिभागी बंधु, जो अतिथिगण, जो विद्वज्जन, शोधार्थी बंधु आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं आदरणीय राजेश जोशी जी, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत प्रसन्नता का क्षण है कि आज हम उनसे इस ऑनलाइन माध्यम से खिलौना एवं अन्य समकालीन कविताएं विषय पर वक्तव्य सुन सकेंगे और उनसे संवाद कर सकेंगे। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस 11वें व्याख्यान में जुड़े हुए सभी प्रतिभागी बंधुओं का स्वागत करते हुए मैं सर्वप्रथम पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो शुभकामना वक्तव्य देकर और आज के इस व्याख्यान का उद्घाटन करने की कृपा करें। डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, प्राचार्य पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु। Thank you, sir. Respected principal of Sri Lal Bahadur Shastri Degree College, Dr. Vandana Saraswat, resource person of today's 11th Ganga Kaveri Vyakhyan Mala, and eminent writer of this great country, Sri Rajesh Joshi ji, organizers of this Vyakhyan Mala, Dr. Shailendra Nath Mishra, Associate Professor and HOD of Hindi, Sri Lal Bahadur Shastri Degree College, Gonda, UP. Dr. Jaishankar Tiwari, Associate Professor, Department of Hindi, Sri Lal Bahadur Shastri College, Gonda. My colleague, Dr. S.A. Manjunath, the HOD of Hindi and also the President of Mangalore University Hindi Teachers Association, and all the participants of this lecture series. First of all, I congratulate all the organizers for taking keen interest to organize this Vyakhyan Mala lecture series. It is not one or two or three. Today's lecture series is the 11th lecture series. Really, we feel very proud of you, all the organizers. You have taken lots of efforts to organize, especially to call eminent personality from various parts of the country. It is not an easy job. So I congratulate all of you. And also this program is very grand success, very successful program. All the programs are very successful, not only because of the organizers, enthusiastic, motivating, encouraging participation of all the participants. Now itself, today's lecture also, there are 75 participants from all over the country and few are from
outsiders also from different parts of the world. So from all this point of view, it's a very successful program. Through this program, इस program के साथ आपने all over world में Hindi writers को who are interested in Hindi literature who have come together under a single platform. This is really a good effort to bring all the Hindi writers, Hindi scholars under a single platform, even this pandemic COVID-19. You have taken all these challenges as opportunities. At the same time, I would like to thank the management and principal of Lal Bahadur Shastri College. You involved us, or Pompey College, in this fruitful, useful Vyakhyanmala. And also, I thank the resource person of today's lecture series, Sri Rajesh Joshi, an eminent poet of this nation. Sir, your Khilona, a Lambi Kavitaye, it is in our Mangalore University second BSc third semester textbook as one of the topics. So that definitely this your lecture will give us more information, and also the topic which you are going to lecture today, that is Khilona or Anya Samakalin Kavitaye. Definitely other participants will listen your lecture because there are so many other eminent writers and also the poets in this country. They will compare, or they will study, they will listen, and they compare your Lambi Kavitaye with other poems. With these words, I am very happy to sir told just Jaishankar Tiwari told to inaugurate. Already it is inaugurated. So wish you all the best. Thank you for giving the opportunity to be with you. Wish you all the best once again. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, dear participants. Thank you, organizers. बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य महोदय, आप ने शुभकामना वक्तव्य देकर आज के इस व्याख्यान का उद्घाटन किया, और आपके उत्साह जनक शब्दों से, उत्साहजनक वाक्यों से हमें ये जो संबल प्राप्त होता है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी अनुक्रम में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम से मैं निवेदन करूंगा कि जो इस अवसर पर अपने शुभकामना वक्तव्य देकर हमारा उत्साह वर्धन करने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम। धन्यवाद जयशंकर जी। इस वेब मंच पे उपस्थित सभी को मेरा सादर अभिवादन। बहुत हर्ष का विषय है कि आप सबके आयोजक मंडल के सतत प्रयास के फलस्वरूप ये जो श्रृंखला गंगा कावेरी व्याख्यान माला की हो रही थी, वो अपने निर्धारित रूप में अनवरत चल रही है। जिस प्रकार से उसको अपना लक्ष्य लेके निर्धारित किया गया है, उसी रूप में बहुत सफल तरह से, बहुत अच्छी तरह से संचालित हो रही है। और हमको उत्तर से दक्षिण की ओर जो जोड़ने का एक प्रयास है, इतना सफल और सराहनीय प्रयास है कि जिन लोगों के वक्तव्य आज इस मंच पे हम लोग सुन पा रहे हैं, उससे लाभान्वित हो पा रहे हैं, जिनको आज तक ख्याति लब्ध लोगों का कभी दर्शन का अवसर नहीं मिला, उन सबके विचारों से और इस माध्यम से उनको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। इस सब के लिए इस आयोजक मंडल की जितनी भी प्रशंसा किया जाए, और उनके प्रयास जो इसके पीछे लगे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और प्रिंसिपल, पॉम्पे कॉलेज के प्रिंसिपल, आयोजक मंडल और आज के जो हमारे बीच में जुड़ेंगे विद्वान वक्ता श्री राजेश जोशी जी, जो कि भोपाल से हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और खिलौना और अन्य समकालीन कविताओं पे आज इनकी बातें हम सुनेंगे। और जहां तक मैं समझ पाई हूँ इस विषय से,
कि बच्चों को लेकर के इनका बहुत साहित्य इन्होंने लिखा है और बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठ हस्ताक्षर हैं हिंदी जगत के, कविता के क्षेत्र के। तो निश्चित रूप से आज के जो ये व्याख्यान माला है ये अपनी सफलता को प्राप्त करेगी और जिन उद्देश्यों को लेके ये चली है व्याख्यान माला निश्चित रूप से उसको पूरा करेगी। इन सब चीजों को देख के जितने अभी तक हम लोग व्याख्यान सुन चुके हैं, निश्चित रूप से ये माला के मनकों की तरह हमारे सामने जो आ चुके हैं अब तक पुष्प, लेकिन जो पीछे से जोड़ने वाली जो कड़ी है, जो धागा है, जो इन सबको पिरोए हुए है, वो प्रमुख रूप से आयोजक मंडल है, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देता। हम विद्वानों के विचारों से लाभान्वित होते हैं, किंतु जो उसके पीछे का प्रयास है, जो धागा है, जो उत्तर से दक्षिण तक डॉक्टर मंजूनाथ जी, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी और डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी के जो प्रयास हैं, उनकी वजह से ही आज हम इस अवसर को प्राप्त कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से उन सबके उज्जवल भविष्य, इस व्याख्यान माला के भविष्य के लिए ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत सदिच्छाएं। साथ ही पुनः मुझे यहाँ अवसर देने के लिए सभी आयोजक मंडल के सभी लोगों को धन्यवाद और पुनः पॉम्पे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को बहुत सादर अभिवादन। धन्यवाद। जयशंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके उत्साहजनक वक्तव्य से के प्रति हम आभारी हैं और आपका ये आशीर्वाद हमको इस व्याख्यान माला को सतत मिल रहा है। इस हेतु हम आपको बार बार आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इसी क्रम में अब हम आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, जिनका समय लेने के लिए एक तरह से हमने कई बार प्रयास किया और उनका समय मुझे प्राप्त हुआ। आज ये गंगा कावेरी व्याख्यान माला के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि जिनकी रचनाओं को हम लोग बहुत ही लंबे समय से पढ़ते आए हैं, आज उनसे एक परिसंवाद का ये अवसर हमें उपलब्ध हुआ है। आदरणीय वक्ता आज के जो हैं हमारे वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ साहित्यकार राजेश जोशी जी, जिनका परिचय हिंदी जगत और हिंदी के बाहर की जो साहित्यिक जगत है उसमें सभी लोगों को जो हैं उनको मालूम है। फिर भी एक औपचारिकतावश मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करके उन्हें आपके से रूबरू कराता हूं। 1946 में 18 जुलाई को मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में राजेश जोशी जी का जन्म हुआ। उनका जो व्यक्तित्व है वह अलग अलग रूपों में अगर देखेंगे आप तो पत्रकारिता से भी वो शुरू में जुड़े। शुरू में वो पत्रकारिता भी की उन्होंने कुछ समय तक और वो शिक्षक भी रहे। बहुत कम लोगों को मालूम है कि उन्होंने अध्यापकीय जीवन की भी शुरुआत की थी और बाद में एक लंबे समय तक भारतीय स्टेट बैंक में उन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक सेवाएं दी। ये तो एक उनका ऐसा जीवन था जो एक जीवन रहा है जो जिसका संबंध जीविका से भी रहा है, लेकिन वो एक समानांतर उनका जो साहित्यिक जीवन है जो आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 1977 में उनकी समरगाथा नामक लंबी कविता प्रकाशित हुई थी, बाद में वो पुस्तक रूप में आई। 1980 में एक दिन बोलेंगे पेड़, ये कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। 1985 में मिट्टी का चेहरा कविता संग्रह प्रकाश में आया। नेपथ्य में हंसी 1994 में कविता की पुस्तक प्रकाशित हुई और 2000 में दो पंक्तियों के बीच कविता संग्रह का नाम है दो पंक्तियों के बीच, जिसे बाद में साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार राजेश जोशी जी को मिला हुआ है। चांद की वर्तनी शीर्षक से 2006 में उनका कविता संग्रह प्रकाशित हुआ और बच्चों के लिए जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं 1989 में गेंद निराली मिट्ठू की इस शीर्षक से उनका ये बाल कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। साथियों, उन्होंने
कहानियां भी लिखी हैं। 2 कहानी संग्रह उनके प्रकाशित हुए हैं, सोमवार और अन्य कहानियां 1982 में, और 2001 में कपिल का पेड़। उन्होंने कई नाटक लिखे हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग भी की। पटकथा लेखन में भी उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य किया। जादू जंगल 1981 में उन्होंने नाटक लिखा। रेणु जी की कहानी पर आधारित नाटक अच्छे आदमी 1989 में उनका प्रकाशित हुआ। टंकारा का गाना 1989 में, और एक नुक्कड़ नाटक उनका बड़ा प्रसिद्ध हुआ है, हमें जवाब चाहिए। मायाकोवस्की की कविताओं का अनुवाद उन्होंने हिंदी में किया, पतलून पहना बादल के नाम से। और आचार्य भर्तृहरि जो क्लासिक कवि हैं, संस्कृत के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, जो नीति शतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम के रचयिता हैं। कहते हैं कि वो राजा थे और बाद में उनको वैराग्य हो गया, बाद में उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। ऐसे आचार्य भर्तृहरि की रचनाओं की उन्होंने अनुरचना की है, एक तरह से उसका पुनः सृजन किया है उनकी कविताओं को अपने ढंग से। बहुत ही दिलचस्प है ये। 2010 में उनकी कवि आलोचना की जो टिप्पणियां हैं, एक कवि की नोटबुक के नाम से प्रकाशित हुई। हम हिंदी के विद्यार्थी और अध्यापक जानते हैं कि राजेश जोशी जी जहां एक तरफ बेहतरीन कविताएं लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, वहीं उनकी आलोचनात्मक टिप्पणियां बहुत ही दिलचस्प, बहुत पठनीय होती हैं। जो परंपरा अज्ञेय विजय देव नारायण शाही और मलयज के द्वारा आती है, एक जिसको कवि आलोचना नाम भी दिया जाता है, मैं समझता हूं राजेश जोशी जी की जो कवि आलोचना है वह किसी भी सहृदय पाठक के लिए बहुत प्रीतिकर होती है। किस्सा कोताह के नाम से 2012 में उनका आख्यान प्रकाशित हुआ। और इसी तरह से उन्होंने साहित्य में प्रभुत परिमाण में उन्होंने सृजन किया है। सतत वो रचना सर्जना से जुड़े हुए रहे हैं। उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुक्तिबोध पुरस्कार, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, शिखर सम्मान, जनकवि मुकुट विहारी सरोज सम्मान, और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 2 पंक्तियों के बीच कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। वो सतत स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं और भोपाल में रहते हैं। आदरणीय कवि राजेश जोशी जी, उनका समय हमें बहुत ही मुश्किल से मिला है। मैंने शुरू में बताया 75वें वर्ष में वो प्रवेश कर गए हैं। जगह जगह पर उनके इस 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर अभिनंदन उनका किया जा रहा है। गंगा कावेरी व्याख्यान माला इस अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है आज उन्हें अपने बीच में पाकर, और उनके वक्तव्य को सुनकर हम लोग कृतार्थ होंगे। बिना किसी और अतिरिक्त भूमिका के, बातों के, मैं आपके और उनके बीच में अधिक नहीं पढ़ना चाहता हूं। इसलिए मैं सीधे जिनकी कविताएं मुहावरा बन चुकी हैं, बच्चों पर उनकी जो कविता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, एक तरह से मुहावरे जैसा वो पाठ उसका हिंदी कविता में होता है। तो ऐसे कवि राजेश जोशी जी को मैं आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि वो अपना माइक्रोफोन अगर म्यूट हो तो अनम्यूट कर लें और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। राजेश जोशी जी। सर, मेरी आवाज जा रही है राजेश जोशी जी? मैं देखता हूं, अभी पहले आप जुड़े रहे हैं, हाँ जुड़े हुए हैं। सर, आपका माइक्रोफोन बंद है। माइक जुड़े हुए हैं? हाँ जुड़े हुए हैं सर। हाँ हाँ अब ओपन हो गया जी। स्वागत है सर। आवाज आ रही है ना? जी जी आवाज आ रही है सर जी। नमस्कार।
सबसे पहले गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजकों श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभाग और पोंपे कॉलेज एकला मंगलुरु के हिंदी विभाग का मैं आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ का और आज के आयोजन के जो हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं, डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, डॉक्टर मंजूराज जी, डॉक्टर वंदना सारस्वत जी, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्रा जी, डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी और सभी श्रोताओं का सर मैं एक सेकंड के लिए रोकना चाहता हूं, आपका वीडियो भी ऑफ हो गया है। वीडियो ऑन कर लीजिएगा सर। ऑडियो बंद, ऑडियो ऑन है, वीडियो भी ऑन कर लीजिए सर। वीडियो बगल में आइकन होगा। कहाँ है? हाँ हाँ जी जी। माइक्रोफोन की जस्ट बगल में ही वो आइकन है वीडियो का। बीच में रेड बटन होगी सर, और उसके एक तरफ जो है माइक्रोफोन है, दूसरी तरफ जो है वीडियो। सर आवाज जा रही? हेलो सर। हैं जी जी जुड़े हैं, उनका माइक भी ऑन है। जी जी। संभवतः दूसरी आईडी से जुड़ रहे हैं। सर ऑडियो आवाज तो हाँ हाँ आवाज आ रही है सर, आ रही है। हाँ हाँ अब जो है आप दिखाई श्रव्य भी है, दृश्य भी है। ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके सर, स्वागत। तो सभी श्रोताओं का और सभी आयोजकों का आभारी हूँ। जैसा कि मुझसे कहा गया है कि मेरी जो लंबी कविता है खिलौना, उसके बारे में मैं कुछ कहूँ। हालांकि ये बहुत ही कठिन है किसी कवि के लिए, और ये जानना कि कोई भी कविता किस तरह बनती है या वो मन मस्तिष्क की कितनी लंबी और कितनी घुमावदार यात्राओं के बाद वो हम तक पहुंचती है, ये कहना बड़ा कठिन है। ये कविता 2004 में लिखी गई थी। हालांकि लिखी जाने की जो तिथि होती है, कविता उससे बहुत पहले ही कहीं जन्म ले चुकी होती है। खुद कवि भी कई बार पूरी तरह नहीं जानता कि किसी कविता में ने कब प्राथमिक रूप से जन्म लिया और कब उसकी प्रक्रिया कवि के भीतर शुरू। रचना प्रक्रिया मुझे हमेशा लगता है कि एक बहुत ही जादुई सी प्रक्रिया। हालांकि उसकी बहुत सारी व्याख्याएं करने की कोशिश की गई है, पर उसे ठीक ठीक पूरी तरह से जानना हमेशा एक तरह से मुश्किल रहा है। पीछे मुड़कर अगर देखूं इस कविता की, खासतौर से खिलौना कविता के संदर्भ में बात कर रहा हूं, कि पीछे मुड़कर अगर देखूं ये कहाँ से शुरू है, ये बहुत मुश्किल तो है। पर 1986-87 की बात है कि मैं मास्को गया था। भारत महोत्सव चल रहा था और उसमें मैं एक बेले ग्रुप के साथ मास्को गया था। वहां पर हमको एक बहुत बड़े बहुमंजिला स्टोर में ले जाया गया, जहां सिर्फ बच्चों की, हर मंजिल पर बच्चों के खिलौने, हर मंजिल पे बच्चों के काम आने वाली चीजें। और मतलब ये अद्भुत था कि इतने सारे खिलौनों को मैं पहली बार जीवन में एक साथ देखा, और वो भी ये एक अद्भुत स्टोर था। ये 86-87 की बात है। उस समय तक सॉफ्ट टॉयज का चलन हमारे यहाँ नहीं हुआ।
वहां से मैंने एक मीशा जैसे खरगोश है खरीदा, जो सॉफ्ट टॉयज की तरह था। और दूसरा खिलौना जो मैंने खरीदा, वो खिलौना एक जोकर था, जिसके रंग बिरंगे कपड़े थे, जिसका चेहरा बहुत रंग बिरंगा था। मेरी बेटी उस समय 5 साढ़े 5 साल की थी, और वो जोकर इतना सुंदर था कि वो मेरी अंतश्चेतना का में लगभग अपनी जगह बना चुका था, अपना घर बना चुका था। वे चाबी वाला नहीं था, लेकिन मेरे सपनों और दिवा स्वप्नों में भी उसने कुछ इस तरह की जगह बना ली थी कि वो उस अंतश्चेतना में कई कई तरह के करतब करता। इसके कुछ बरस बाद एक दिन मेरे कवि मित्र और आलोचक विजय कुमार ने मुझे एक किस्सा, साठोत्तरी के दौर का, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साठोत्तरी के दौर में जो कहानियां लिखी जा रही थी, उसका एक बहुत ही केंद्रीय सूत्र था संयुक्त परिवार के टूटने। तो संयुक्त परिवार टूट रहे थे, और इस पर हर दूसरी तीसरी कहानी जो थी वो संयुक्त परिवारों के टूटने पर थी। ये पाठक जो जिसके विजय कुमार बात कर रहे थे, इसने बहुत कहानियां पढ़ी उस समय, उसको कहानी पढ़ने का चस्का था, और वो देख रहा था कि संयुक्त परिवार टूटने की, हर कहानी में संयुक्त परिवार टूटने की बात हो रही। तब उसके मन में ये ख्याल आया कि जब संयुक्त परिवार टूटेंगे, एकल परिवार बनेंगे, तो उसमें बच्चों की स्थिति क्या हो, बच्चे किस तरह अकेले हो जाएंगे। और इसलिए बच्चों के लिए कौन से उपाय किए जाएं, या कौन से ऐसे खिलौने बनाए जाएं जो इस स्थिति का सामना कर, यानी इस एकल परिवार में अकेले होते हुए बच्चों के लिए इस तरह के खिलौनों की इजाजत। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ बहुत कम इस तरह के सोशलॉजिकल वर्क हुए हैं, इस तरह के समाजशास्त्र काम हुए हैं कि हम जानें कि खिलौनों में समय और समाज में होने वाले परिवर्तनों के साथ किस तरह के परिवर्तन होते हैं। ये बहुत ही कम हमारे यहाँ हुआ है। पर उस मित्र ने, जो विजय कुमार का मित्र था, उसने इस पर विचार किया, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो खिलौनों के उद्योग से जुड़ गया। ये किस्सा मेरे दिमाग में कहीं दर्ज था, रूस से लाया गया वो जोकर दर्ज था। और 70 के दशक में ही मैंने चार्ली चैपलिन की बहुत सारी फिल्में देखी। इसमें एक फिल्म है, आपको याद होगा कि किड नाम से एक फिल्म है बच्चों की, जिसमें एक गरीब बच्चा है, एक पहलवान का बच्चा है। तो उस फिल्म का भी बहुत गहरा असर मुझ पर हुआ। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ और सुंदर हास्य बिना करुणा के पैदा नहीं होता। चार्ली चैपलिन की फिल्में इसीलिए कहीं बहुत गहरे अंदर से अंदर तक छूती हैं कि वो एक गहरी करुणा भी हास्य के साथ पैदा करती हैं। इसी बीच इस कविता, यानी खिलौना नाम की जो कविता है, इसका बीज कब मन की मिट्टी में पड़ गया, ये जानना बड़ा मुश्किल। 17-18 साल मन में ये सारी सामग्री इकट्ठी होती रही, और इसके बीच एक किस्म की, कहना चाहिए, रसायन क्रिया होती रही। और इस केमिस्ट्री से कहीं ना कहीं इन प्रक्रियाओं के बीच कहा जा सकता है कि इस कविता ने जन्म लिया। इस तरह कई कई बार ऐसा होता है, आप लंबी कविता जब लिख रहे होते हैं तो ऐसा बहुत बार कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन लगातार होते हैं। हम लोग अगर मुक्तबोध की पांडुलिपियों को देखें तो हम जान सकते हैं कि लंबी कविता की प्रक्रिया अक्सर बहुत उलझी हुई और थोड़ी जटिल होती है, और उसमें बहुत बार बहुत तरह के परिवर्तन। ये परिवर्तन होते रहे,
और एक दिन ये कविता बनी जिसमें ये सबसे बड़ा सवाल था कि अकेले हो रहे बच्चों के लिए हम किस तरह के खिलौने बनाएं। हमारे समाज में बच्चों को लेकर खास तौर से बहुत काम नहीं हुआ। हम बहुत कम बच्चों के मन को जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर हम 70 साल में देखें, यानी आज़ादी के बाद से, तो हम हमारे पास कोई ऐसा शोध, कोई ऐसा समाजशास्त्रीय अध्ययन नहीं हमें मिलेगा कि जिसमें मिट्टी के और कपड़े के खिलौने से लेकर आज के बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत नए खिलौनों तक आने के बीच में कितनी प्रक्रियाएं घटी और किस तरह से खिलौनों में बदलाव हुआ, किस तरह से बहुत ही हिंसक किस्म के खिलौने भी समाज में बीच में आते। तो इन सारे सवालों को लेकर कहीं मन में ये था कि उस कविता में ये सारे सवाल आए। ये सारे सवाल उसमें आते हैं कि एक तो ये कि कैसे बच्चे अकेले हो रहे हैं परिवार के टूटने के बाद, और कैसे बाजार जो है उन्हें बहुत ही हिंसक किस्म के खिलौनों की तरफ ले जा रहा है। तो इस सब के बीच में एक ऐसे खिलौने की इजाद है। इसी बीच मेरी बेटी जो बड़ी हो रही थी और वो इंजीनियर हुई और उसके बाद वो IIT पवई गई और उसने प्रोडक्ट डिजाइनिंग में वहां पे एडमिशन लिया। तो वहां एक बड़ा दिलचस्प प्रोजेक्ट हुआ कि कैसे प्लास्टिक को रिप्लेस करके बांस से खिलौने बनाए, बांस को कैसे प्लास्टिक का विकल्प बनाया जाए। ये बहुत सारी ऐसी बातें थी जो एक साथ गडमट। इसमें भी वो जो खिलौने बनाने वाला आर्टिस्ट, वो एक तरह का पढ़ा लिखा इंजीनियर है जो बच्चों के खिलौने बनाने की कोशिश कर रहा है और बार बार उस नए नए तरह से सोचता है और डिजाइन बनाता है। वो एक डिजाइनर है और अंत में वो एक ऐसा जोकर बनाता है जो जोकरों से मिलता भी है पर वो अलग भी होता है। और वो कहता है कि बच्चों, जब तुम इस खिलौने को छुओ तो उस जगह को भी छूना, उस जो मैंने बाजार की निगाह से बचाकर उसके भीतर जो संवेदना रख दी उसको छूने की कोशिश करना। यही एक कुछ कुल मिला के बातें थी जो खिलौना कविता को बनाने के या बनने की प्रक्रिया में घटित हुई और उसने कविता का जन्म लिया। इसके साथ ही जैसे कहा गया कि समकालीन कविता पर कुछ बातें मैं आपसे करूं, तो 70 के दशक से पहले जब हम देखते हैं तो अक्सर पाते हैं कि कविता की प्रवृत्तियों के अनुसार जो कवि समय बदलते हैं, कविता के नए नए समय आते हैं, उनका या कवि काव्य आंदोलनों के कोई ना कोई नामकरण होता था। जैसे छायावाद हुआ, द्विवेदी युग हुआ, छायावाद हुआ, छायावाद के बाद उत्तर छायावाद आया, प्रगतिवाद आया, नई कविता आई। साठोत्तरी में बहुत ही दिलचस्प बात है, एक लेख लिखा गया किस्म किस्म की कविता, और साठोत्तरी में बहुत तरह के नामकरण कविता के हुए। यानी आ कविता आई, आ कविता के बाद बीटनिक कविता आई, उसी के बीच एक समूह था, एक कवियों का एक ग्रुप था जिसने अपनी कविता के लिए, जो कि आ कविता से के सहमत नहीं था या आ कविता से कहीं ना कहीं सहमति जिसकी थी, उसने अपनी कविता के लिए युवा कविता जैसा पद इजाद किया। या 68 के आसपास एक बड़ी घटना भारतीय इतिहास में हुई जब नक्सलबाड़ी का विद्रोह, और उसके साथ कविता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा कि नक्सलबाड़ी
ने एक बड़ा काम ये किया कि जो शहरों की तरफ कविता चली गई उसे वापस गांव की तरफ ले जाने का काम। तो वो एक नक्सल कविता थी। ये 70 से पहले तक का दृश्य था, जो हम लोग जब आए, यानी 70 के बाद जो हम लोगों ने अपनी परंपरा से प्राप्त किया गया देखा। 70 के बाद से लेकर ये 5 दशक जो हमारे सामने है, इसमें हम पाते हैं कि कोई नामकरण इस तरह के नहीं हुए। ये जरूर है कि 70 और 80 के दशक को 8वां दशक कहकर अलग अलगाने की कोशिश हुई, पर हम देखें कि बहुत नामकरण नहीं हुए और 5 दशक की कविता को लगभग समकालीन जैसे पद से पुकारा जाने लगा, तो उसे सबको समकालीन कविता कहा है। जबकि अगर इन 5 दशकों में देखें तो बहुत सारे यानी परिवर्तन समाज में या जीवन में हुए। कहा जा सकता है कि बहुत सारे अवरोध या बहुत सारे परिवर्तन आए, जैसे इमरजेंसी आई। तो इमरजेंसी से पहले और इमरजेंसी के बाद की कविता का विभाजन करें तो बहुत सारे परिवर्तन हमें दिखाई देंगे। 1990 में एक बड़ा परिवर्तन जब सोवियत संघ का विघटन होता है। सोवियत संघ का विघटन होता है, उसी समय बहुत सारी बहसें आपने सुनी होंगी, बहुत सारी बहसें उस समय आई, विचारधारा कांड, इतिहास कांड आदि बहुत सारी इस तरह की बहसें आई। पर उसी समय नई प्रौद्योगिकी ने भारत में एक तरह से बहुत बड़ा परिवर्तन किया और उसने टाइम की गति को बहुत तेजी से बदला। आप देखेंगे बिल गेट्स का विंडो लगभग 85 और 90 के बीच में आता है, या प्लास्टिक मनी उसी समय आती है। तो बहुत तेजी से बदलाव हो रहे थे। और फिर 2000 के बाद जो 21वीं सदी आई, वो लगभग उसी का एक तरह का एक्सटेंशन था, उसी तरह की का उसी तरह की गतियों का एक्सटेंशन था। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण युवा कवि हैं अदनान कफील दरवेश, जो 21वीं सदी के युवा कवि हैं। उनने अभी कहा कि 2010 यानी 21वीं सदी के दूसरे दशक में कविता में बड़े बदलाव हुए हैं और उन्हें प्रस्थान बिंदु माना जाना चाहिए 21वीं सदी का, क्योंकि 2010 में कविता लोक भूमि से संवाद बनाती है, भावबोध और काव्य भाषा में बदलाव आते हैं, उसे निभाने का सक्षम शिल्प खोजा जाता है। और हम देखेंगे एक बहुत बड़ा, बहुत ही दिलचस्प परिवर्तन, और वो था स्मार्टफोन का आना। उसने या गूगल के आने ने ही बहुत सारी जो जानकारियां थी उन्हें हमारी हथेली में लाकर रख दिया। और इस तरह अब हमें जानकारियों के लिए किसी तरीके का रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं। तो एक तरह से जानकारी और स्मृति के बीच में एक तरह का संबंध बदल रहा। जो हम पुराने लोग जिस तरह से हर चीज को याद करते थे कि कौन से सन में अकबर हुआ और कौन सा पहाड़ा किस तरह पढ़ा जाता है, तो वो सारी चीजें अब आवश्यक नहीं थी। स्मार्टफोन ने उन सारी जानकारियों को एक बटन दबाकर हमारे सामने रखा। स्मृति और जानकारी के बीच जो संबंध बदल रहा था, उससे भी कविता पर एक गहरा प्रभाव बन रहा। ये कविता उस तरह से बहुत सारे बिंबों और विवरणों, यानी 90 के बाद ही अगर आप देखें तो एकाएक जो विज्ञापन की भाषा ने जो उत्पात मचाया, इस तरह से जो बिंबों की भाषा कभी कविता ने ईजाद की थी, वो पूरी भाषा लगभग कहना चाहिए कि विज्ञापनों ने हत्या ली। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो 90 के बाद की कविता में बिंब कम हुए और आख्यान की तरफ कविता गई। तो उसे कहा जा सकता है कि वो यानी बहुत अधिक आख्यान परक
कविता 90 के बाद हमें हिंदी में दिखाई दी। ये एक बड़ा परिवर्तन था जो समकालीन कविता में हो रहा था। एक बड़ा संकट इस शब्द में भी है, समकालीनता के शब्द में भी है। रघुवीर सहाय ने, यानी ये बहुत ही, कभी इसकी व्याख्या बहुत ठीक ठीक तो नहीं हुई कि समकालीनता आप किसको कहेंगे। रघुवीर सहाय ने लिखा है कि समकालीनता मानव भविष्य के प्रति पक्षधरता का दूसरा नाम। इस तरह समकालीनता एक वैचारिक या विचारधारात्मक प्रवर्ग या श्रेणी बन जाती है। आगे इसी टिप्पणी में उन्होंने जोड़ा कि मानव भविष्य में एक ऐसे जीवन की कल्पना निहित है जिसे आज की भाषा में समाजवादी कहते हैं। इस तरह ये एक राजनीतिक प्रत्यय भी बन जाती है। इसी तरह कवि विजेंद्र ने इसे सुंदर शास्त्र की श्रेणी में ले जाते हैं। उनका मानना है कि अपने समय में लिखना एक बात है और समकालीन होना दूसरी बात। एक बड़ा और समर्थ कवि वही है जो अपने समय में लिखकर समकालीन भी। इसलिए बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हम कबीर भी हमारे समकालीन हैं, तुलसी भी हमारे समकालीन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हमें मिल जाती हैं जो जो हमारे समय की समस्याओं से जुड़ती हैं। तो समकालीनता एक बड़ा उलझा हुआ पद है वैसे, और उसकी कोई व्याख्या नहीं होती, और पर ये तो माना ही जा सकता है कि समय उसका एक सबसे बड़ा केंद्रीय। अब ये समय जो है, ये कोई कैलेंडर का समय नहीं, ये घड़ी का समय भी नहीं। ये एक, इस समय को कैसे हम यानी व्याख्यायित करें या कैसे जाने, मुझे लगता है कि ये कोई भी ऐसी घटना जो देश के स्तर पर, यानी राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ऐसी कोई भी घटना जो समय को उससे पूर्व के और बाद के समय में विकसित कर देती है या विभाजित कर देती है, उसे हमको समय की एक सीमा मानना चाहिए। जैसे हम कहते हैं स्वातंत्रोत्तर समय कहा जाता है, तो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता से बाद, क्योंकि स्वतंत्रता एक इतनी बड़ी घटना थी जिसने पूरे समय को दो भागों में विभाजित कर दिया। तो इस जैसे 1990 में सोवियत संघ के विघटन ने भी समय को विभाजित कर दिया, या जैसे विश्व युद्धों ने समय को विभाजित कर दिया। इसीलिए पोस्ट वार पोइट्री जैसे प्रत्यय का यूज किया गया। पोस्ट वार पोइट्री, बहुत सारी यूरोप की पोइट्री की आई है जिसे पोस्ट वार पोइट्री कहते हैं। तो ये समय को जो विभाजित करने वाली ऐसी घटना जो अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर घटित होती, वो कहीं ना कहीं समकालीनता के लिए एक प्रस्थान बिंदु बनती है। और इसलिए हमें मानना चाहिए कि 90 के आसपास का समय, जिसमें सोवियत संघ का ही विघटन नहीं हुआ, बल्कि विंडो आने से, यानी कंप्यूटर के आने ने एक तरह से समय की गति को बहुत तेजी से बदल दिया। समय वही नहीं बचा जो पहले जो समय की गति थी, बल्कि मेरे एक कवि मित्र ने ये यहाँ तक कहा कि समय की गति इतनी तेजी से बदल गई कि जिससे हमने पुराने जो मेलों में लगने वाले झूले होते थे, हाथ से कोई झूले वाला घुमाता था, उस पर बैठे हुए बच्चे को जैसे मेरी गो राउंड पर उठाकर बिठा दिया। तो इतना तेज परिवर्तन समय की गति में हुआ था। और इन सारी चीजों का जो असर हुआ, वो उसने बहुत सारी, कविता भी एक ऐसी चीज है, या पूरा सृजन ही एक ऐसी चीज है जो अपने समय में हो रहे परिवर्तनों से अछूता नहीं रह सकती, वो उससे अलग नहीं। बिल गेट्स का एक कथन है कि इंटरनेट एक प्रचंड लहर है
जो कंप्यूटर इंडस्ट्री को अपनी लपेट में ले रही है, और बहुत से लोग जो इस लहर में तैरना सीखने में संकोच करेंगे, वो डूब जाएंगे। तो ये सच है कि एक बड़ा भारी जो परिवर्तन हुआ है, उसके साथ बहुत सारे परिवर्तनों के साथ कदम ताल करना कठिन तो होता है, लेकिन कविता को हमेशा अपने वर्तमान से मुठभेड़ करना ही। ये ठीक है कि कोई भी समकाल, कोई भी इस कविता का कोई भी समय ऐसा नहीं होता जो उसी समय आ रही पीढ़ी से पहचाना जाए। बहुत सारी पीढ़ियां एक समय में एक साथ सक्रिय होती। जैसे अगर हम अभी का समय देखें तो उसमें बहुत सारी पीढ़ियां एक साथ सक्रिय हैं। वो कवि भी हैं जो नई कविता के साथ आए थे, या जो साठोत्तरी कविता के साथ आए थे। अभी कुछ समय पहले तक अगर हम देखें तो कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह हमारे बीच थे, जो नई कविता के उत्तरार्ध में आए कवि थे। साठोत्तरी के कई कवि हैं जो अभी सक्रिय हैं या हैं, चाहे सौमित्र मोहन हों, चाहे अशोक वाजपेयी हों। इस तरह के कई कवि हैं जो हमारे साथ हैं। फिर उसके बाद अगर हम 60 के बाद के दशकों के नक्सल विद्रोह के समय के कवियों को देखें, या जैसे विजेंद्र हैं, जैसे ऋतुराज हैं, ये सब कवि जो साठोत्तरी के साथ आए थे वो अभी सक्रिय हैं। और इस तरह बहुत सारी पीढ़ियां, और एकदम वर्तमान में जो नई पीढ़ी आ रही है, जो युवा कवि आ रहे हैं, वो एक साथ सक्रिय, और ये सब मिलके एक समकालीन कविता का परिदृश्य बना। इन सब से मिलकर समकालीन कविता के नाक नक्श बनते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम सोचें कि हम जो वर्तमान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वही कोई इसकी नाक नक्श बना रही है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी जो घटनाएं हो रही होती हैं उस पर बहुत सारे बुजुर्ग कवियों के, या बहुत सारे कवि होते हैं सीनियर, उनकी धारणाएं भी बहुत काम करती हैं। आप देखें कि जब 90 में सोवियत संघ का विघटन हो रहा था, तो बहुत सारी बातें की जा रही थी, इतिहास के अंत की बात की जा रही थी, या विचारधारा के अंत की बात की जा रही थी। उस समय कुंवर नारायण ने एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में कहा था कि सत्ताओं के अंत से विचारधाराओं का अंत नहीं। या ताद्युश रोजेविच, जो पोलैंड के एक बहुत ही बड़े कवि थे, जो अब नहीं है पर उस समय थे, तो ताद्युश रोजेविच ने यहां तक कहा कि ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो सोवियत संघ का अंत हुआ है, इससे कोई नई समझदारी पैदा नहीं। तो ये ऐसी चीजें थी जो हमें अपने बहुत वरिष्ठ कवियों से ये समझ मिल रही थी। इसलिए मैं कह रहा था कि कोई भी काल, कोई भी समय हो, वो कई पीढ़ी के रचनाकार मिलकर उसके नाक नक्श बनाते। जैसे हमारा जो समकालीन है, जो हमारी कविता का समय है, उसे भी बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। और हम देखें कि इसके साथ जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया, हम पाते हैं कि हमको, यानी हमारे देश को, एक बहुत बड़े स्वाधीनता संग्राम से गुजरना। और लगभग अगर हम 1857 को प्रथम स्वाधीनता संग्राम जैसा कहा गया उसे मान लें, तो 1947 तक लगभग 90 साल के स्वाधीनता संग्राम के लंबे इतिहास को हम देखें, तो हम पाएंगे कि इस में एक बड़ा काम, बड़ी समस्या यह होती है जब बहुत बड़ा कोई मुद्दा केंद्रीय होता, तो जो कई दूसरे विमर्श होते हैं वो अवदमित हो जाते। हालांकि महात्मा गांधी का की सबसे बड़ी उपलब्धि है
मुझे लगता है कि गांधी ने जो सबसे बड़ा काम किया कि खासतौर पे हिंदी प्रदेश का जो इलाका था, जिसमें उस तरह से नवजागरण नहीं हुआ जिस तरह बंगाल में हुआ या जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ, उस तरह का नवजागरण हिंदी प्रदेशों में नहीं हुआ। तो जो छूटे हुए सवाल थे, स्त्री शिक्षा के सवाल थे, दलितों के सवाल थे, हरिजनों के मंदिर प्रवेश के सवाल, इस तरह के बहुत सारे नवजागरण के सवालों को उनने स्वाधीनता संघर्ष में, स्वाधीनता संग्राम के मूल सवाल के साथ जोड़ने का। और इसके अगर उदाहरण देखें, बहुत सुंदर कविताएं उससे प्राप्त हुई। सियाराम शरण गुप्त की एक महान कविता है, एक फूल की चाह, तो जिसमें एक अछूत लड़की है जो देवी के प्रसाद का एक फूल लाने के लिए अपने पिता से कहती है, और वो मंदिर में प्रवेश करके फूल लाने की कोशिश करता है, मारा जाता है। वो बड़ी मार्मिक कविता है। तो ऐसे सवालों का असर हुआ कविता पे, पूरे कविता पे। तो ये एक बड़ा कारण हम देख सकते हैं कि 90 के बाद अचानक हम पाते हैं कि हिंदी में कई विमर्श जो कभी हमारे स्वाधीनता संग्राम में दबा दिए गए या दब गए, जो अवदमित हो गए, वो सारे विमर्श अचानक सतह पर, जैसे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, यहाँ तक कि पर्यावरण विमर्श है, और विकास की अवधारणाओं को लेकर एक बड़ी बहस हिंदी क्षेत्र में ही नहीं, पूरे भारत में इन सब का असर होता है। साहित्य में एक साथ बहुत सारे विमर्श, और शायद कहना चाहिए कि हिंदी में इतनी अधिक स्त्री लेखन इससे पहले कभी हुआ मैं याद नहीं। तो स्त्री विमर्श का, दलित विमर्श का, बहुत सारे दलित लेखक आए, हालांकि मराठी में या और भाषाओं में, गुजराती में दलित विमर्श के आंदोलन पहले हो, हिंदी में ये थोड़ा देर से आए। पर 90 के बाद ये सारे विमर्श एक साथ आए और इनने एक पूरे वातावरण को कहीं ना कहीं बदला है। ये भी है कि जैसा कि ब्रेख्ट ने लिखा कि जीवन बदलता रहता है, और उसे चित्रित करने के लिए जरूरी है कि हम चित्रण के साधनों को भी बदलते रहें। तो ये हमेशा होगा कि हमें बहुत सारे अपने टूल्स को बदलना होगा। समकालीन कविता हमेशा ऐसा करती है कि वो अपने टूल्स, अपने कहन की शैलियां बदलती है, अपने तमाम साधनों को बदलती है, अपनी समझ को बदलती है। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं, समकालीन कविता में उन परिवर्तनों को होते हुए देख सकते हैं जो लगभग इस 3-4-5 दशकों में हुए हैं। खासतौर से 60 के बाद जो परिवर्तन आए उनको एक तरह से रेखांकित किया जा सकता है, और खासतौर से टेक्नोलॉजी के आने के बाद और इन विमर्शों के आने के बाद किस तरह के परिवर्तन हो रहे थे। एक युवा आलोचक हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैभव सिंह एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा आलोचक हैं। ये कहा गया कि जब नई टेक्नोलॉजी आई तो जैसा कि माना जाता है कि जब इंडस्ट्री आई तो उसने महाकाव्य का विघटन कर दिया और उससे उपन्यास पैदा हुआ। तो उसके बाद महाकाव्य लिखने की परंपरा नहीं है, महाकाव्य विभाजित हो गया। इसी तरह से कहा जा सकता है कि नई टेक्नोलॉजी आई उसने महाआख्यान को विभाजित। अब कोई कविता में एक महाआख्यान को रचना की संभावनाएं कम हो, खत्म हो गई तो मैं नहीं कहूंगा, पर कम हो। तो ये महाआख्यान जो विकसित हुआ तो उससे एक तरह के छोटे छोटे उपाख्यान जिन्हें कहते हैं वो कविता में
उत्पाद रहे। ये भी कहा जा सकता है कि ये जो प्रक्रिया है इसने कविता को अधिक लोकतांत्रिक बनाया। महाआख्यान एक तरह का ऐसा ढांचा है जो एक तरह का आधिपत्य भी करता है, इसलिए महाआख्यान का टूटना एक तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कविता में आना भी माना जाता है। इसलिए जैसा कि वैभव सिंह ने कहा कि कोई बड़ा आख्यान संभव नहीं हुआ, शिल्प छोटा है और इसलिए कोई बड़ी कविता संभव नहीं हो रही। मुझे लगता है कि जिस तरह महाआख्यान का विकसन हुआ और टेक्नोलॉजी ने इसको विकसित किया, तो वर्तमान में कोई ऐसी कविता हमें नहीं दिखती जो महाआख्यान हो, जिसका बहुत बड़ा कैनवास हो। और इसीलिए बहुत छोटे छोटे आख्यानों के साथ कविता आ रही है, जो सब सारी कविताओं का दृश्य मिलकर कहना चाहिए कि एक बड़े आख्यान को रच रही है। मुझे लगता है कि समकालीन कविता पर मुझे ये हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है क्या? माइक्रोफोन तो खैर खुला हुआ है, लग रहा है नेटवर्क इशू हो रहा है। सर मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? राज सर की आवाज नहीं आ रही है। जी जी, कुछ नेटवर्क की समस्या लग रही वो है। शायद दूसरे में कोशिश कर रहे हैं। कुछ तकनीकी बाधा आई है। और हाँ सर का फोन माइक्रोफोन हाँ म्यूट था और अनम्यूट हुआ है। तो शायद कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, तो अब आवाज आ रही आ रही है सर, आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि ये एक ऐसा समय है जिसमें समकालीन कविता में बहुत सारे छोटे छोटे आख्यानों से मिलकर एक बड़ा आख्यान, अपने समय का एक आख्यान कविता रच रही है। और इसलिए समकालीन कविता एक तरह की बहुत अधिक लोकतांत्रिक, या एक कहना चाहिए कि सामूहिक प्रक्रिया की तरह दिखाई दे सकती है। तो यही कुछ बातें थी जो खिलौना और समकालीन कविता के संदर्भ में मुझे करनी थी। मुझे उम्मीद है कि कुछ अगर कोई सवाल इससे उठे हैं तो वो उन जी पे जी बात हम लोग कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे प्रतिभागी बंधु जो भी जुड़े हुए हैं, उनमें से अगर किसी को कुछ कोई जिज्ञासा है, किसी तरह का कोई सवाल है, तो वो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके वो कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में अगर कोई प्रश्न है तो आप डाल सकते हैं। जिस तरह से आदरणीय राजेश जोशी जी के द्वारा हमारे समय को और तकनीक के दबाव को और साहित्य
की उसकी जो एक मुठभेड़ है या उसको साहित्य किस रूप में ले रहा है और किस तरह मौजूदा समस्याओं को प्रतिकृत करता हुआ साहित्य का अलग अलग रूप हमारे सामने आ रहा है। उन्होंने समकालीन हिंदी कविता पर और आज़ादी के बाद की जो हिंदी साहित्य के अलग अलग रूप हैं उन पर बहुत ही विस्तार से, बहुत ही समेकित ढंग से आपने वक्तव्य अपना प्रस्तुत किया है और अपना मूल्यवान समय देने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हम चाहते हैं कि प्रतिभागी बंधु में से अगर कोई किसी भी तरह का ये जो विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा अगर है, कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। इतने सुंदर ढंग से आपने चीज़ों को रखा है, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी कुछ सोचने वाली बातें हैं। लगातार लोग सोचेंगे। आपने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि महाआख्यान किस तरह से समाप्त हो रहे हैं और ये एक तरह से कविता में, साहित्य में लोकतांत्रिकता की उपस्थिति है या लोकतांत्रिकता का और अधिक बढ़ना है, ये अपने आप में बहुत नोटेबल बात है। मुझे लगता है कि कोई सवाल नहीं है किसी का और आपको सुन करके हम सचमुच आह्लादित हैं हम लोग। और गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस अनुरोध को आपने स्वीकार किया सर। आपने अपना मूल्यवान समय दे करके इस तकनीक की जो जटिलताएं हैं उसको भी आपने सॉल्व किया। आप हमसे जुड़े और आपने समकालीन कविता और अपनी लंबी कविता खिलौना के संदर्भ में जो बातें की हैं, समय तो ऐसे ज़्यादा हो गया है। मैं आपसे एक व्यक्तिगत रूप से एक विनय करना चाहता था कि आपकी अगर 2-3 कुछ कविताएं जो है आ जाती, उन कविताओं का अगर वाचन आप कर देते तो बहुत अच्छा होता। कविता तो मैं सुना सकता हूँ, नहीं वो जी जी, पर समय काफी हो गया है। कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। आपको जो है सुनने के लिए लोग जो है, हमें भरोसा है लोग जमे रहेंगे। अभी आप जो है 1 घंटे और भी बोलेंगे तो जमे रहेंगे। नहीं, इतना मैं नहीं करूंगा, इतना अत्याचार नहीं, नहीं। तो मैं कह रहा हूँ सर। बाकी आपकी जो है कुछ कविताएं जो है आ जाएंगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं आपको कुछ 2-3 कविताएं सुनाता हूँ। जी है ना? जी, स्वागत है सर। मेरा हेलो 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 जी, ठीक। तो ये कविता है, मैं झुकता हूँ। जी। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ। रोटी का कौर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूँ अपनी थाली पर। जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूँ लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने। जैसे लज्जित या अपमानित होकर झुकती हैं आंखें। झुकता हूँ जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आंखें झुकती हैं। ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। झुकता हूँ जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है। ये कथन सिर्फ शरीर के नैसर्गिक गुणों या अवगुणों को ही व्यक्त नहीं करता। कहावतें अर्थ से ज्यादा अभिप्राय में निवास करती हैं। क्या बात है सर, बहुत अद्भुत सर। ये मेरा वो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं। आपको मेरा वीडियो दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हाँ सर, दिख रहा था, अब ऑफ हो गया है। अच्छा, ऑफ हो गया ये ऑन कीजिएगा। अब दिख रहा है? अब दृश्य हैं, आप दिख रहे हैं सर जी। अच्छा चलिए, तो एक कविता और सुनाता हूँ।
जी जी, स्वागत है सर। ये है इत्यादि। जी कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। कुछ लोगों के नामों का उल्लेख किया गया था जिनके ओहदे थे, बाकी सब इत्यादि थे। इत्यादि तादाद में हमेशा ही ज्यादा होते थे। इत्यादि भाव ताव करके सब्जी खरीदते थे और खाना वाना खाकर खास लोगों के भाषण सुनने जाते थे। इत्यादि हर गोष्ठी में उपस्थिति बढ़ाते थे। इत्यादि जुलूस में जाते थे, तख्तियां उठाते थे, नारे लगाते थे। इत्यादि लंबी लाइनों में लगकर मतदान करते थे। उन्हें लगातार ऐसा भ्रम दिया गया था कि वे ही इस लोकतंत्र में सरकार बनाते हैं। इत्यादि हमेशा ही आंदोलनों में शामिल होते थे, इसलिए कभी कभी पुलिस की गोली से मार दिए जाते। जब वे पुलिस की गोली से मार दिए जाते थे तब उनके वो नाम भी हमें बतलाए जाते थे जो स्कूल में भर्ती करवाते समय रखे गए या जिससे उनमें से कुछ पगार पाते थे। कुछ तो ऐसी दुर्घटना में भी इत्यादि रह जाते थे। इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते इत्यादि यूं तो हर जोखिम से डरते थे, लेकिन कभी कभी जब वो डरना छोड़ देते थे तो बाकी सब उनसे डरने लगते थे। इत्यादि ही करने को वो सारे काम करते थे जिससे देश और दुनिया चलती थी। हालांकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो ये सारे काम सिर्फ अपना परिवार चलाने को करते हैं। इत्यादि हर जगह शामिल थे, पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे। इत्यादि बस कुछ सिर फिरे कवियों की कविता में अक्सर दिख जाते थे। तो क्या बात है सर, क्या बात है, अद्भुत। आपको एक अंतिम कविता सुनाता हूँ। जी ये कविता स्वागत स्वागत। है बिल्लियां और कविताएं, और ये कविता एक पाणिनि जो कि महान व्याकरणाचार्य हुए हैं संस्कृत के, उनसे किसी ने पूछा कि कवि को भाषा को कैसे बरतना चाहिए, भाषा का उपयोग कैसे करना चाहिए। इसका उत्तर पाणिनि ने दिया था, उसका कहीं इसमें जिक्र है और ये कविता है। मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। मन के एक टुकड़े से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। मन की ही तरह उनके भी हिस्से में आया भटकना। अव्वल तो वो पालतू बनती नहीं और बन जाए तो भरोसे के लायक नहीं होती। उनके पांव की आवाज नहीं होती। हरी चालाकी से बनाई गई उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। चांद के भ्रम में वो भगोनी में रखा दूध पी जाती है। मन के एक हिस्से से चांद बनाया गया और दूसरे से बिल्लियां। चांद के हिस्से में अमरता आई और बिल्लियों के हिस्से में मृत्यु। इसलिए चांद से गप लड़ाते कवि का उन्होंने अक्सर रास्ता काटा। इस तरह कविता में संशय का जन्म हुआ। वो अपने सद्यजात बच्चे को अपने दांतों के बीच इतने होले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती। वो अपने सद्यजात बच्चे को अपने दांतों के बीच इतने होले से पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, कवि को जैसे भाषा को बरतने का सूत्र समझा रहे। धन्यवाद। तो कविताओं के साथ विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी धन्यवाद आपका भी। लोगों का सुनने का मन शायद और भी है पर सर एक बात है चलिए सर। फिर किसी हाँ, एक आध बार ये हम लोग मिलेंगे। और हमारे साथी जो पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु में है, डॉक्टर एस मंजूनाथ जी, हाँ वो कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, क्या करें, सर नमस्कार बताएं सर। बताएं। नमस्कार नमस्कार आवाज नहीं आ रही मंजुनाथ जी। सर। नमस्कार सर, आवाज आ हाँ रही है? नमस्कार। हाँ आई। हाँ सर, हमने आपको बनारस में सुना था। हाँ बनारस में लिटरेचर कोर्स में आपको सुना था, हमने आपको हाँ देखा था।
अरे वाह। और सर आपके लिए आपको आप 70 वर्ष वसंत परिपूर्ण कर चुके हैं सर, 70 नहीं, इसीलिए 75वां वर्ष, 75वां वर्ष 75वां वर्ष आ गया। आपको गंगा कावेरी व्याख्यान माला की ओर से बहुत 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 बधाई सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद, बहुत अच्छा जी लगा जी आप सब लोगों से मिलके, और बहुत ही खुशी की बात है कि इतने देर मैंने आप सब लोगों से बात की, तो जी, बहुत बहुत ही बहुत धन्यवाद सर। अभी अभी हमारे मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी जिस रिफ्रेशर कोर्स में मिलने की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा स्मरण दिला दूं। मैं भी साथ में उस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में था, और अरे वाह। हाँ, आशीष त्रिपाठी जी और हाँ डॉक्टर प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी उस समय उसको समन्वयन कर रहे थे, और आपको अच्छा। बुलाया गया था। आपका को सुनने का विस्तार से और आपकी कविताओं को सुनने का हम लोगों को मौका मिला था। तो आज हम आपको अपने बीच में पाकर बहुत ही प्रफुल्लित हैं, और बहुत ही बारंबार आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, हम लोगों से आपने संवाद स्थापित किया, अपनी कविताएं पढ़ी आपने। पुनः मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस व्याख्यान में हमारे साथ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर ए अरविंदाक्षन जी केरल से जुड़े हुए हैं। मैं उनका भी नमस्कार। इस व्याख्यान माला में स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करता हूं उनको। ये हमारे लिए बड़ा सुखद है कि इस महीने की का जो व्याख्यान सुनिश्चित है, उसमें इस महीने के अंत में 31 तारीख को उनका व्याख्यान भारतीय साहित्य पर सुनिश्चित है होगा। तो आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके प्रति हम आभारी हैं। इसी क्रम में लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत जी ने शुरू में शुभकामना दी, हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर डी.के. गुप्त सर का आशीर्वाद हमें सतत प्राप्त होता रहा है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इसी कड़ी में साहित्य भूषण पुरस्कार से समलंकृत और हमारे गुरुतुल्य डॉक्टर सूर्यपाल सिंह सर, जो लंबे समय तक एक शिक्षा जगत से जुड़े रहे, शिक्षाविद के रूप में, साहित्यकार के रूप में प्रख्यात हैं। वो भटौली कॉलेज गोरखपुर में वो प्रिंसिपल रहे लंबे समय तक, LBS कॉलेज में रहे। उनको मैं प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से ढेर सारे लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं, लेकिन सबके प्रति मैं विनयावनत हूं, प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष और हमारे आदरणीय गुरु डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर भी जुड़े हुए हैं, यद्यपि एक यात्रा में थे, इसलिए उन्होंने आज अपना ये वो प्रास्ताविकी उन्होंने अपनी स्थगित की हुई थी। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं इस अवसर पर। और इसी अनुक्रम में मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष और हमारे दाहिने हाथ के रूप में डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी, जिनके संयुक्त तत्वावधान में हम इस व्याख्यान माला को सफल बना पा रहे हैं, हम उनके प्रति भी आभारी हैं। इसी कड़ी में ढेर सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। और आज का ये जो सारस्वत परिचर्चा आज जो संपन्न हुई है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और गंगा कावेरी व्याख्यान माला में एक महत्वपूर्ण मन का आज सर आपके वक्तव्य से जुड़ा है। पुनः मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अभी हमारे डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी से बात हुई, वहाँ कर्नाटक में बारिश बहुत तेज हो रही है, इसलिए मैं उनकी ओर से, मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से, पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु की तरफ से, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गोंडा के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी प्रतिभागी साथियों, मित्रों, विद्वज्जनों, शोधार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
मैं एक सूचना दे दूं, यहीं से अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस महीने की जो अन्य जो व्याख्यानमाला में जो अन्य व्याख्यान हैं उनमें 17 तारीख को हमारे साथ जुड़ रही हैं एक हिंदी आलोचना की एक सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर निर्मला जैन मैडम, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रही हैं और जिनका नाम हिंदी आलोचना में बहुत ही प्रतिष्ठित है। भारतीय काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र की वो आचार्य रही हैं। उनका समय हमें प्राप्त हुआ है और इसी कड़ी में हिंदी के सुपरिचित नाम वरिष्ठ कवि और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति, अन्य कारणों से बहुत चर्चा में बने रहने वाले अशोक वाजपेयी जी का हमें समय प्राप्त हुआ है। वो साहित्य और अन्य साहित्य और कलाओं के संबंध में बात करेंगे 24 तारीख को, और 31 तारीख को प्रोफेसर ए अरविंदाक्षन जी, जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति रह चुके हैं, केरल में जो रहते हैं, आज उन सभी का हमें व्याख्यान क्रमशः प्राप्त हुआ है। तो ये अक्टूबर माह गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। मैं आप सभी प्रतिभागी बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि आप इन व्याख्यानों में हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप भी ढेर सारे अनुभवों से जुड़ेंगे और हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम की संपन्नता की घोषणा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।